ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಜನ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ ಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ 4-5 ಜನ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಸಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಸೋಲನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ಮೇಯರ್ ಉಪಮೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಮೇಯರ್ ಉಪಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಎಂದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿತು. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಸೋಲನ್ನ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರಬೇಕೆಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 10ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ ದಿನದಂದು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂದರು. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಪಕ್ಷ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದರು. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಹಿಸದ ಬಿಜೆಪಿ ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ನೂರಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಬರುವ ಮುನ್ನ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಬ್ಬಿನ ದರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. 1-2 ವರ್ಷ ಬಿಲ್ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ಮೇಲೆ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದರು. 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है. उसमें आम आदमी पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, चुनाव में हिस्सा ले रही है. और संयोग ये है कि नेशनल पार्टी, कुछ दिन पहले हमें नेशनल पार्टी का दर्जा मिला. नेशनल पार्टी बनने के बाद ये हमारा पहला विधानसभा चुनाव है. और कर्नाटका में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. पंजाब में जलंधर की एक बाई इलेक्शन है, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं. कल मैं हुबली और रौना विधानसभा क्षेत्रों में गया था. वहाँ जाकर देखकर रोड शो में पता चला, जोश देखकर लोग अपने आप आए हुए थे. जब लोग अपने आप आते हैं, जब लोग खुद ब खुद पैदल चल के जब अपने वाहन पर खुद अपना तेल डलवा कर अपने मोटरसाइकिल या गाड़ी में खुद आएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग पुराने सिस्टम से तंग है और नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं. बिल्कुल पंजाब जैसा माहौल मैंने कल रौना में देखा. और आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है. अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला ग्राउंड से एक छोटा सा काफिला शुरू किया था, जो आज नेशनल पार्टी के रूप में बहुत बड़ा बन चुका है. दिल्ली में हमारी दूसरी बार सरकार है. पंजाब में हमारी सरकार है. 10 हमारे राज्यसभा के MP हैं. गोवा में हमारे 5 MLA हैं. 13% वोट शेयर है गुजरात में. और गोवा में हमारे 2 MLA हैं. और आम आदमी पार्टी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी ऑफ इंडिया, इतनी जल्दी किसी पार्टी ने राइज नहीं किया, क्योंकि पार्टी ईमानदार है. एक टीम की तरह हम काम करते हैं. हर टीम मैन की एक ड्यूटी लगी है. कैप्टन हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं. दिल्ली में जितने काम हुए शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वो आप सब जानते हैं. जब भी एक मैं आपको तरीका बताता हूँ ये चेक करने का कि आम आदमी पार्टी ने लोगों के पक्ष में कोई फैसला किया, जैसे ही किसी बिल को या किसी कानून को दिल्ली का LG रोके, साइन करने से मना करे, इसका मतलब वो लोगों के पक्ष में था, क्योंकि उन्होंने ये धार रखा है
कि अरविंद केजरीवाल जब भी लोगों के पक्ष में कोई काम करेंगे एलजी रोकेगा। एलजी कहता मैं विधानसभा नहीं चलने दूंगा। एलजी कहता मैं आपको डोर टू डोर राशन बांटने की अनुमति नहीं दूंगा। एलजी कहता मैं आपके प्रिंसिपल्स को सिंगापुर या फिनलैंड वगैरह लेटेस्ट तरीके एजुकेशन के, ट्रेनिंग के, टीचिंग के वो लेके सिखलाई लेने जाने नहीं दूंगा। तो ये लोकतंत्र की हत्या है असल में। पंजाब में भी ऐसा होता है। राज्यपाल साहब हमारे कह रहे हैं विधानसभा सेशन नहीं होने देंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा कि हमारा बजट सेशन होने दीजिए। तो इन्होंने ये कर रखा है। दो नुकाती प्रोग्राम है बीजेपी का। अगर तो इलेक्शन से जीत गए तो ठीक है, वरना बाई इलेक्शन से जीतेंगे उसी स्टेट में। 20-30 कांग्रेस वाले, कांग्रेस तो आपको पता है चेंज नहीं है, अब एक्सचेंज है, वो तो जितने मर्जी खरीद लो उनके, वो उनसे इस्तीफे दिलवा के बाद में बाई इलेक्शन करवा के, ओथ सेरेमनी तो सुबह 4 बजे होती है, 3 बजे होती है, राज्यपाल को जगा लेते हैं, उठो जी एक बार मुख्यमंत्री की ओथ करवा दो, बाद में देखेंगे। अगर बाई इलेक्शन से नहीं आई तो बाई इलेक्शन में, और अगर बाई इलेक्शन वाला भी माहौल नहीं बन रहा तो फिर गवर्नर के जरिए तंग करो। पंजाब में 2 हैं बीजेपी के, हमारे 92 हैं 117 में से। कहीं भी आसपास ऑपरेशन लोटस लागू नहीं हो सकता। नहीं, हम आम आदमी पार्टी वाले टूटने वाले नहीं हैं। वहाँ गवर्नर से तंग करो। ऐसे बंगाल के गवर्नर कर रहे हैं। ऐसे मुझे सीएम तमिलनाडु की चिट्ठी मिली है कि 2-2 साल गवर्नर साइन नहीं करते, जो हम विधानसभा में एक्ट पास करते हैं। तो लोकतंत्र में इलेक्टेड लोग फैसला करते हैं, सिलेक्टेड नहीं। यही दिक्कत है बस। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए, यूपी के राज्यपाल ने योगी जी को कितने लेटर लिखे होंगे? गुजरात के राज्यपाल ने कितने लेटर लिखे होंगे अपने मुख्यमंत्री को? तो ये सिर्फ यहाँ इनकी सरकार नहीं है, वहाँ तंग करने के तरीके। और बीजेपी वैसे भी जुमला, भारतीय जुमला पार्टी है, जुमले बनाते हैं और सुनाते हैं। तो आम आदमी पार्टी एजुकेशन की बात करती है। पंजाब में हम स्कूल एजुकेशन की तरफ बहुत कमाल के स्टेप ले रहे हैं। 504 हम आम आदमी क्लिनिक खोल चुके हैं और 21,21,350 आदमी 31 मार्च 2023 तक वहाँ पे फुटफॉल थी और ठीक होके चले गए। पंजाब में बिजली हमने फ्री करने का वादा किया था। 1 जुलाई से 83% पंजाब को बिजली का बिल 0 आता है। और पंजाब में किसानों का मुआवजा जो है, फसलें खराब हुई 15,000 रुपया पर एकड़ विदिन 20 डेज। अब अभी 26 मार्च को खराब हुई थी फसल, 13 अप्रैल को पहले चेक दे दिए थे हमने। सबसे बड़ी बात जो पंजाब से मैच करती है यहाँ बेलगांव में, वो है गन्ना की खेती, शुगर केन। बिल्कुल सेम दिक्कत 1 साल पहले हमारे यहाँ भी थी। गन्ना का रेट नहीं मिलता था। जो गन्ना की मिलें हैं ओन्ड बाई पॉलिटिशियंस, 1-1 साल, 1.5 साल, 2 साल पैसे नहीं मिलते थे। कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर अंदर पैसे देने बनते हैं। तो जब हमने सरकार टेक ओवर की आज से 13 महीने पहले, तो हमने गन्ना उत्पादकों को बुलाया। कितने पैसे? 392 करोड़ रुपया शुगर केन का पंजाब सरकार ने देना था। सबसे पहले पंजाब सरकार ने शुगर केन को कर्ज मुक्त किया, 392 करोड़ दिए। 380 रुपये क्विंटल, पूरे देश में सबसे ज़्यादा 380 रुपये क्विंटल हमारे पंजाब में गन्ने का भाव है, जहाँ 220 रुपये है। वो भी मिलता नहीं है। और हमारे यहाँ भी मिलें पैसे नहीं देती थी। हमने उनको बुलाया मिल वालों को कि गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी, आपकी सारी प्रॉपर्टी बेच के हम लोगों का पैसा देंगे, वरना 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। अगर नीयत सच्ची हो सब कुछ हो सकता है। तो गन्ने का किसान हमारे यहाँ खुश है। फिर पंजाब में मैं आपके सामने 1 साल में 28,042 2042 नौकरियाँ सरकारी देकर आपके सामने खड़ा हूँ। कच्चे मुलाजिमों को जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको पक्के कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। कोई किसी डिपार्टमेंट में अगर लीगल प्रॉब्लम आ जाए कि हाई कोर्ट मांगे, हाई कोर्ट कुछ पत्र मांगे, तो क्लियर करने के लिए हमारे पास बड़े बड़े वकील हैं, मुलाजिमों की तरफ से हम लड़ते हैं। तो हमारे यहाँ करप्शन के लिए हमने हेल्पलाइन खोली। आज 350 से ज़्यादा बड़े बड़े मंत्री या कोई अफसर वो जेल के अंदर है। जैसे राजकुमार भाई भी करप्शन के खिलाफ और डेवलपमेंट के लिए लड़ाई करते हैं कि ये बेलगांव में
आसपास इलाके में डेवलपमेंट होनी चाहिए, करप्शन फ्री, भ्रष्टाचार मुक्त कर्नाटका होना चाहिए। अभी आपके यहाँ तो दो थोड़ा आप, क्योंकि साइज़ में कर्नाटका बड़ा है, 224 सीटें हैं, हमारे यहाँ 117 हैं, लोकसभा की 13 हैं, आपके यहाँ 28 हैं, तो फिर भ्रष्टाचार भी बड़ा होगा ना। फिर हमारे एक मंत्री को हमने पकड़ा, इंडस्ट्री मिनिस्टर था कांग्रेस गवर्नमेंट में, उसके घर से 1 नोट गिनने वाली मशीन मिली, मुझे यहाँ पता चला यहाँ 3 मिली हैं, 4 मिली हैं, तो फिर बड़ा है ना साइज़ में कर्नाटका, ठीक है ना। तो नोट गिनने वाली मशीनें घर पे मिल रही हैं, क्या ये सोचकर हमारे शहीदों ने फांसी के रस्से चूमे थे कि हम इनको इतनी आज़ादी दे देंगे, देश के लोगों को ही लूटेंगे? ये कोई जवाब है इनके पास? क्या शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह जी रहना, तो मतलब इतने शहीद, ये देखो 1824 की बात, 1824 से संग्राम लड़ रहे, वो इस बात के लिए, आज के दिन देखने के लिए लड़ रहे थे कि आज़ाद हो जाएंगे, गोरे चले जाएंगे, ये काले अंग्रेज आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया है फिर? तो इन्होंने देश को ही लूटा और किसको लूटा है? और सब इस मोदी जी के मित्र जो हैं वो मतलब माला माल हो रहे हैं और देश बेहाल हो रहा है। वो कहते हैं जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की जनता भिखारी। तो करप्शन के लिए हमने एंटी करप्शन हेल्पलाइन खोली है, हर रोज हम पकड़ते हैं। विजिलेंस ब्यूरो हमारी अब अटैच करती है, प्रॉपर्टी भी अटैच करते हैं हम, करप्शन से उसने क्या प्रॉपर्टी बनाई वो अटैच करते हैं। तो आम आदमी पार्टी झाड़ू का चुनाव चिन्ह है और झाड़ू का काम ही सफाई करना होता है। तो मुझे पत्रकारों ने पूछा कि कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा जी खूब आएंगी, कल मैंने देखा है लोगों का जोश, ये जीतने वाला माहौल है। तो कहते जी फिर भी कितनी? मैंने कहा गिनती नहीं बता सकता, आएंगी, थोड़ी देर बाद बता सकता हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा आऊँगा। तो कहते सर्वे में तो आप आ नहीं रहे, टीवी के सब सर्वे में। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में ही आते हैं बस। किसी ने नहीं कहा था कि दिल्ली में सर्वे में आम आदमी पार्टी जीतेगी, उसको 63 सीट्स आएंगी। किसी सर्वे ने नहीं कहा था कि पंजाब में 92 सीट्स आएंगी। हम सर्वे में नहीं आते, वो सर्वे तो घर पे बैठ के बनते हैं जी, पता है, ठीक है ना। तो हम तो लोगों में जाते हैं, लोग हमारा सर्वे हैं। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। जी अभी आपने दिल्ली में जैसा इलेक्शन लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद पंजाब, उसके बाद गुजरात, जितना आप आम आदमी पार्टी इंटरेस्ट किया था, जितने रैली किए थे, उतना इंटरेस्ट आप कर्नाटक में क्यों नहीं दिखे? नहीं आ रहे हैं हम। आपको उम्मीद नहीं है क्या करना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले भी मैं आके गया हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ आके गया हूँ दावनगिरी है। और अभी 2 दिन में, कल भी मेरी 3 जनसभाएं थी, आज भी 2 रोड शो हैं, एक जनसभा है, कल नॉमिनेशन भी करवाए और इसके बाद फिर मैं आऊँगा अगले हफ्ते फिर, क्योंकि मेरे का पंजाब में भी इलेक्शन है, बाई इलेक्शन सेम डेट को। तो हमारे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP राघव चड्ढा जी वो बेंगलोर में हैं, आज और कल पूरे दिन बेंगलोर में है। केजरीवाल साहब भी आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हमारा देखिए, हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते कि नहीं, हमारी तो नई पार्टी है, क्या पता कहाँ से ज्वालामुखी फूट जाए। तो लोगों का विश्वास करना, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि हम चेहरे की राजनीति करें। ये हमारे सारे नेता हैं। आप कहते हो कि कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है। पंजाब में 92 में से 82 फर्स्ट टाइमर हैं, मैं भी फर्स्ट टाइमर हूँ, पहली बार MLA बना हूँ, MP में पहले बन गया था। तो आम घरों के लड़कों ने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया हुआ है। तो पब्लिक है, लोकतंत्र में पब्लिक बड़ी होती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। सर, कर्नाटक में आज भी कई जगह IT रेड हुआ है, क्या केंद्र सरकार ये IT और ED को ना इस्तेमाल कर रही है? देखो, जब सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, जब इलेक्शन कमीशन का जो हेड है, जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है, उसकी फाइल इतनी ज़्यादा तेज़ी से चले कि अमेरिका भी पीछे छूट जाए। 1 घंटे में इस्तीफा परवान, आधे घंटे में राष्ट्रपति की परमिशन, अगले 1 घंटे में बन गया जी। तो जब नॉन BJP शासित प्रदेशों में CBI, IT और ED इनकी रेडें हों, तो इसका मतलब यही है कि इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत ख़राब कर दिया है और ये डराते हैं
इससे पहले भी सीबीआई को सरकार का तोता बोला गया था। अब जो तोता है वो तो जो चोरी डालेगा उसी का मिट्ठू मिट्ठू करेगा ना। तो जितने ईडी की जो रेड्स हैं उनका जो कितने उसमें से चार्जशीट करके दोषी साबित हुए उसकी परसेंटेज पता है आपको? 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। मनीष सिसोदिया के घर पे ईडी आ गई, सोफे भी चेक कर लिए, पूरा घर खंगाल दिया, गांव चले गए, वहाँ 300 रेड हुई। कितने अफसर ड्यूटी पे लगे होंगे, मतलब अगर उनके अफसरों की एक एक दिन की तनख्वाह भी जोड़ लेना उतने पैसे भी नहीं मिले। फिर भी चलो अंदर, क्योंकि स्कूल बना रहा है ये तो शिक्षित कर रहा है लोगों को। ये तो एमसीडी में हमारा बहुमत आ गया, आपको पता ही है, हमारा बहुमत आ गया। फिर भी कहते नहीं मेयर हमारा बनेगा। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा जी कि जी हम बहुमत में हैं, हमें जरा करवा दीजिए सर। ये इनको ये यकीन ही नहीं होता कि हम हार गए। इनको हारना भी सीखना होगा, कर्नाटका में सीख जाएंगे ये। और बाकी रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस गुजरात में हमने बहुत मेहनत की सबने, और इसी वजह से 13% वोट आए, राष्ट्रीय पार्टी बनी। गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। गुजरात में इलेक्शन ही नहीं लड़ेगा कांग्रेस ने। कांग्रेस तो ऐसे कहती है कि अब हमारी बारी आएगी, अपने आप ही आएगी। कोई आया बड़ा यहाँ पे उनका, जो रिमोट एरिया में कोई गांव में कोई गया, कोई वो तो भारत पता नहीं कहाँ से जोड़ रहे हैं। वो भारत जोड़ो पार्टी जुड़ नहीं रही है उनसे। और जितने एमएलए होते हैं, जो कांग्रेस है वो आजकल चेंज नहीं है, वो एक्सचेंज है। किसी के 2-4 एमएलए कम पड़ते हो कांग्रेस से ले लो, किसी का बहुमत थोड़ा कमज़ोर हो, ज़्यादा स्ट्रांग करना है कांग्रेस से खरीद लो। तो कांग्रेस तो मतलब अपने ऑफिस पे फट्टा लगा ले कि यहाँ पर लोगों द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं। कांग्रेस को वोट देकर क्या करोगे? क्या पता कब बीजेपी में चला जाए वो। कितने अच्छा बीजेपी वाले इधर चले हुए हैं आजकल कांग्रेस की तरफ। तो ये आपस में मतलब खेल खेलते रहते हैं, तू इधर आ जा मैं तुझे नहीं कुछ कहूँगा, तू उधर आ जा मैं तुझे नहीं। पंजाब में भी ऐसा था, 5 साल वो 5 साल वो, लेकिन अब पंजाब में तीसरा विकल्प आ गया और पंजाब तरक्की की लीहों पर आ गया। और जो घोटाले निकल रहे हैं वो ऐसे मतलब हैरान करने वाले घोटाले हैं कि मतलब तरस आता है कि इस देश में ऐसा होना नहीं चाहिए था। 75 साल के बाद भी हम अभी सीवरेज, गंदा पानी, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ तक ही खड़े हैं। वो मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे हैं अमेरिका वाले, हम सीवरेज में घुस गए। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स हो रहा है। हाँ जी, वो तो है ही, वो तो कब से है उनका कि अगर मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, अगर तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। इसलिए कोई भी नेता, बड़ा नेता तो ना तो कोई बड़ा नेता हारता है और ना कोई बड़ा नेता जेल जाता है। ये तो जब तीसरी पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है, जब इलेक्शन हुए हैं तभी ईवीएम मशीन के बारे में आप आम आदमी पार्टी एक शक के नज़र से देखिए, मुद्दा उठाइए। देखिए ये पूरे अकेला आम आदमी पार्टी का नहीं, बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं, तो इसको क्लियर कर देना चाहिए। इसमें अगर उनको मोदी लहर पर यकीन है, मैं पार्लियामेंट में मैंने ये बोला था, कोई भी ईवीएम पर सवाल उठे तो बीजेपी विरोध क्यों करती है उसका? नहीं ईवीएम तो ठीक है। मुझे ये बता दीजिए कि अगर उनको मोदी लहर पर इतना यकीन है कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ते हैं, तो वो बोलें छोड़ो जी ईवीएम को, चाहे बैलेट पेपर से करवा लो, हमें यकीन है। लेकिन ईवीएम की रक्षा में क्यों आती है बीजेपी? तो कुछ ना कुछ तो शक होता ही है ना। तो वो दूर कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को ये कि फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। पंजाब में भी तो पंजाब में आपने जब जीता था वहाँ पे भी ईवीएम मशीन पे इलेक्शन हो रहा है। हम तो इतनी देर पर रखवाली करते हैं कि जितनी देर रिजल्ट नहीं आता, हम तो जो होता है ना जो सेंटर जहाँ गिनती होती है वहाँ पर हमारे वॉलंटियर जो हैं वो रातें बिताते हैं और अपनी वोट की खुद रखवाली करते हैं। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೃಥ್ವಿರೆಡ್ಡಿ, ಆಪ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಹೆಗಡೆ, ರವೀಂದ್ರ ಬೆಲ್ಲದ, ಬಸನಗೌಡ, ಚಿಕ್ಕನಗೌಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24/7ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.